کر کے آئے ہیں عمرہ وغیرہ اگر کر کے آئے ہیں جو معتمرین ہیں یعنی جو حجاج ہیں وہ جانتے خانہ کعبہ کا دروازہ بھی پورب کی طرف ملتزم بھی پورب کی طرف ہے. خانہ کعبہ جس کنارے میں حجر اسود لگا ہے خانہ کعبہ کے وہ کنارہ بھی ہے پورب کی طرف جھکا بھی پورب کی طرف. یہ تمام کام پورب کی طرف ملتزم بھی پورب کی طرف جھکا بھی پورب کی طرف خانہ کعبہ کا دروازہ بھی پورب کی طرف حجر اسود بھی پورب کی طرف جھکا بھی پورب کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ آمنہ کا گھر ہے پورب کی طرف. کیا کہنے نہیں بولو گے سبحان اللہ. حضرت آمنہ کا گھر ہے پورب کی طرف اسی طرف کو جھک گیا خانہ کعبہ. حضرت عبد المطلب نے جھک کے دیکھا خانہ کعبہ جھکا ہے پورب کی طرف جھکا ہے ادھر کو جھکا ہے. سوچنے لگے. سوچئے گا آپ بھی غور کیجئے گا کہ جب ہمارے گھر کی عمارت جھک جائے بلڈنگ جھک جائے یا کوئی دیوار جھک جائے تو سوچتے ہو کہ اب اس کو سیدھا کرنے کے لیے کوئی مستری آئے گا کوئی معمار آئے گا تب جا کے یہ سیدھا ہوگا. حضرت عبد المطلب بھی خانہ کعبہ کے متولی ہے. سوچنے لگے کہ یہ کعبہ جھک گیا ہے اب سیدھا کرانے کے لیے ہو سکتا ہے کسی مستری کو لانا پڑ جائے کوئی معمار آئے. لیکن حضرت عبد المطلب کی حیرت کی انتہا نہ رہی. انہوں نے دیکھا کہ جو کعبہ جھکا تھا وہ خود بخود سیدھا کھڑا بھی ہو گیا خود بخود سیدھا کھڑا بھی ہو گیا. حیرت میں پڑ گئے تعجب میں پڑ گئے. جدھر کو جھکا ہے بڑے عقل مند چکے دادا ہے نا مصطفیٰ کے قریش کے سردار بھی ہیں مکے کے سردار بھی ہیں اور سردار ایسا ویسا تھوڑی ہوتا ہے بہت بڑے عقل مند. سوچنے لگے جدھر کو جھکا ادھر ہی کو چلو جدھر کو جھکا ہے کعبہ ادھر ہی کو چلو. حضرت عبد المطلب باب بنو شیبہ سے باہر نکلے باب بنو شیبہ سے باہر نکلے. سامنے صفا پہاڑی ہے صفا پہاڑی پر نظر ڈالی دیکھا کہ صفا اوپر نیچے کو ہل رہا ہے. مروا پر نظر ڈالی تو مروا کو دیکھا کہ مروا دائیں بائیں ہل رہا ہے. حضرت عبد المطلب کو دیکھ رہے ہیں یہ صفا بھی ہل رہا ہے یہ مروا بھی ہل رہا ہے. دل میں ڈر پیدا ہوا پروردگار عالم معاملہ کیا ہے. ادھر کعبہ جھکا ہے ادھر صفا جھوم رہا ہے ادھر مروا رقص کر رہا ہے. معاملہ کیا ہے کیا زلزلہ تو نہیں آئے گا کیا کوئی طوفان تو نہیں آئے گا. ادھر کعبہ جھک رہا ہے ادھر صفا جھوم رہا ہے ادھر مروا جھوم رہا ہے. معاملہ کیا ہے. غیبی آواز آئی ہے عبد المطلب یہ ڈر کیسا یہ خوف کیسا جس کے لیے کعبہ جھکا ہے جس کے لیے صفا جھوما ہے جس کے لیے مروا نے رقص کیا ہے کہ کوئی اور نہیں تمہارا پوتا ہی تو ہے. کیا کہنے واہ واہ سبحان اللہ زندہ باد. بولو وہ تو سب کے سب خوشی منا رہے. اچھا ذرا سوچو وہ پتھر ہو کے خوشی منا رہے. بولو بولو پتھر ہو کے پہاڑی صفا مروا یہ پتھر ہی تو ہے اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ چیز الگ ہے لیکن ہے تو پتھر کی. دونوں پہاڑیاں وہ پتھر کی ہو کے خوشی منائے. اپنے سینوں میں تو نرم گوشت کا دل ہے نا. ہاں خوشی منا رہے. حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ صفا بھی جھوما مروا بھی جھوما ہے اور ہدایت ہے بھی آئی کہ کسی کے لیے نہیں آپ کے پوتے کے لیے جھوما ہے. آپ کی بہو آمنہ کے گھر آ گیا ہے آپ کا پوتا. جا کے دیکھو. دوڑے دوڑے حضرت عبد المطلب حضرت آمنہ کے دروازے پہ آئے. آ کر کیا دیکھا کہ دروازہ تو بند ہے. آمنہ کے دروازے پر ایک خوبصورت پرندہ اپنے پروں کو پھیلائے پہرے داری کر رہا ہے. آمنہ کے دروازے کی پہرے داری کر رہا ہے. حضرت آمنہ کے دروازے پر پر پھیلائے ہیں. اتنا خوبصورت پرندہ. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میری آنکھوں نے کبھی دیکھا اس کے پروں سے نور نکلتا تھا. مکے کے در و دیوار روشن ہو رہے تھے مکے کے در و دیوار روشن ہو رہے تھے. اتنا خوبصورت پرندہ میری نظروں سے گزرا نہ تھا. کہتے اندر گیا آمنہ کے قریب پہنچا. آمنہ سے جا کے بولا آمنہ تمہاری پیشانی نور سے چمکتی تھی آج وہ نور نظر نہیں آ رہا. کہاں ہے وہ نور کس جگہ ہے. حضرت آمنہ عرض کرتی ہے خواجہ عبد المطلب کہیں نہ گیا تمہارے پوتے کی شکل میں آ گیا. کہیں نہیں گیا وہ نور کہیں نہ گیا تمہارے پوتے کی شکل میں آ گیا. حضرت آمنہ سے بولے کہاں ہے میرا لال عبداللہ کی نشانی ذرا دکھاؤ تو صحیح کس جگہ پر ہے. حضرت آمنہ نے اشارہ کیا فلاں جگہ پہ موجود ہے. گئے کمرے کا دروازہ بند. ڈراؤنا مہیب شخص ہے ننگی تلوار ہاتھ میں ہے. مصطفیٰ کے دروازے کی پہرے داری کر رہا ہے مصطفیٰ کی حفاظت کر رہا ہے. باہر اندر دروازہ کھلا اندر گئے دیکھا مصطفیٰ کو. مصطفیٰ کپڑے میں لپٹے ہوئے اس جگہ پہ موجود ہے. مصطفیٰ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا تو وہ خوبصورت چہرہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس کی ترجمانی کرتے ہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ گمان ہے. یہ نبی کا چہرہ ہے.
ये नबी का चेहरा है, वस्फ़ रुख उनका किया करते हैं, शरह बशम से दुआ करते हैं, हम उनकी मदहो सना करते हैं, जिनको महबूब कहा करते हैं, जिनको महबूब कहा करते हैं। और तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी साया में तारे, अंबिया और है सम्मा पारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। वो खूबसूरत चेहरा, वो खूबसूरत चेहरा हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं इतना खूबसूरत कि पेशानी उभरी है, बाल घुंघरालू है। मुस्तफ़ा के जरा पैदाइश का मंजर मुलाहजा कीजिएगा, नबी कैसे तशरीफ लाए। मुस्तफ़ा के बालों में तेल पड़ा हुआ है, मांग कड़ी हुई है, खूबसूरत चेहरा है, बाल घुंघरालू है, सुरमगी आंखें हैं, इतना खूबसूरत। ऐसे आए कि नाफ बुरीदा है, खतना शुदा है, इस शान से तशरीफ लाए, ऐसा खूबसूरत चेहरा। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि ये इतना खूबसूरत तो बच्चा इससे पहले कोई देखा ही न था। इतना खूबसूरत कि जो एक मर्तबा देखे बार बार देखने की तमन्ना, और जो बार बार देखे दिल में रखने की तमन्ना करे। इतना खूबसूरत चेहरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने गोद में ले लिया, आमिना के पास ले आए। आमिना से आके बोले, आमिना मैंने तो काबे को झुकते देखा है, सफा को झूमते देखा है, मरवा को रक्स करते देखा है। आमिना तुम बताओ, जब ये दुनिया में तशरीफ ला रहा था तो तुमने क्या देखा है? जब ये लाल आ रहा था तो तुमने क्या देखा है? मेरे अब्दुल्ला की निशानी आ रही थी, तुमने क्या देखा है? हजरत आमिना कहती मैंने देखा ही नहीं, मैं तो देखती चली आई। निकाह के बाद इस आंगन में आई, नूर मुस्तफा मेरे शिकम में आया न था, लेकिन जब नूर मुस्तफा शिकम में आ गया, उससे पहले जब आंगन में चलती कोई कंकर मेरे पैर के नीचे आता तकलीफ होती थी, लेकिन जब नूर मुस्तफा मेरे शिकम में आ गया, अब अपने आंगन में चलती थी, कोई कंकर या पत्थर मेरे पैर के नीचे आता तकलीफ नहीं होती, मोम की तरह नरम हो जाता था। मैं तो देखती चली आई हूँ। दुनिया के बच्चे आते हैं, कोई गिरता कोई पड़ता आता है, लेकिन मेरा लाल इस शान से तशरीफ लाया कि दुनिया में आते ही पहले घुटनों को देखा है, फिर हाथों को देखा है, फिर पेशानी को देखा है, और रब का सजदा अदा करते आया है मेरा लाल। इस शान से आए हैं मुस्तफा, रब का सजदा अदा करते आए हैं, रब की बारगाह में पेशानी झुकाते आए हैं। और क्या पढ़ रहे थे? जहां कलेमा पढ़ा है, जहां दूसरे कलेमात पढ़े हैं, वहां पर एक कलमा आपके लिए भी था। वो क्या था? ये पढ़ा रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले। बोलो जरा जोर से, मेरी उम्मत मेरे हवाले, मेरी उम्मत मुझे दे दे। ये जुमला मुस्तफा ने बोला पैदाइश के दिन। जरा गौर कीजिएगा, एक बारीक बात बता रहा हूं आपको। मेरे आका ने पैदाइश के दिन ही अपनी उम्मत को याद किया, यानी पैदाइश के दिन ही, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पैदा होते दुनिया में तशरीफ लाते याद किया, पूरी जिंदगी याद करते रहे, लेकिन पैदाइश के दिन भी याद किया। बोलो, पैदाइश के दिन याद किया, आते ही कहा मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। पैदाइश के दिन हमें ऐसा लगा कि जिसने नबी को सालाना पैदाइश के दिन याद किया, मेरे नबी ने जिसे जिसे याद किया होगा हर उसने याद कर लिया। नहीं आया समझ में? नहीं, रब्बे हबली उम्मती, मेरे आका ने जिसे जिसे याद कर लिया हर उसने सालाना भी, एक दिन नहीं, उस दिन भी याद कर लिया। और अगर कोई जुलूस से सरक जाए, खुशी देख के भड़क जाए और शिरक और बिद्दत का फतवा लगाना शुरू कर देना, तो समझ लेना कि नबी ने याद ही ना किया होगा। मैं तहकीकी बात बता दूं, उम्मत की दो किस्में हैं, उम्मत दावत और उम्मत इजाबत। उम्मत दावत और उम्मत, दो किस्म की उम्मतें। एक वो उम्मत कि जैसा नबी को मानने का हक है वैसा मान लिया, यह है उम्मत इजाबत। और उम्मत दावत, कुफ्फार भी है, मुशरिकीन भी है, यहूदी भी है, नसरानी भी है, हम जैसे कुर्ते पजामे वाले भी हैं, यानी वो सब उम्मत दावत में, इसमें उम्मत दावत में है। मेरे आका ने फरमाया, मेरे आका ने अर्ज किया रब की बारगाह में, परवरदिगार आलम मेरी उम्मत मुझे दे दे। जब उम्मत नबी की है तो नबी ये कह क्यों रहे मेरी उम्मत मुझे दे दे? जरा गौर करें आप, उम्मत मुस्तफा की है, नबी की उम्मत। मैं ये कहूं कि मेरा माइक है मुझे दे दो, जब मेरा है तो फिर कौन पकड़ रहा है इसको? नबी अर्ज करते हैं मेरी उम्मत मुझे दे दे, मेरी उम्मत मुझे दे दे, मेरी उम्मत मुझे अता फरमा। है हबीब, उम्मत आप ही की है, आप ये मुतालबा क्यों कर रहे हैं कि मेरी उम्मत मुझे दे दे, मेरी उम्मत मुझे अता फरमा दे? तो मसीयत
मुस्तफविया कहेगी, अपने आका की मसीयत ये बोलेगी कि उम्मत तो सब मेरी है, लेकिन कुछ मेरे मखसूस, कुछ मेरे मखसूस है। ए अल्लाह, मेरी उम्मत के कुछ वो भी बना दे जो मेरी पैदाइश का दिन आए तो मुझ पर सलाम भी पढ़ लिया करे, दरूद और सलाम भी पढ़ लिया करे। ऐसे बना दे कि मुझे जैसा मानने का हक है वैसे माने। हे अल्लाह, मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, जब उम्मत जैसा मुझे मानने का हक है वैसे मानेगी तो फिर वो जहन्नम से भी दूर रहेगी इंशाअल्लाह। मेरे आका ने ये दुआ फरमाई, सजदा करते आए, रब की बारगाह में सर झुकाते आए। परवरदिगार आलम को ये अदा बड़ी पसंद आई, इतनी पसंद आई, परवरदिगार आलम ने देखा मेरा महबूब मेरे लिए झुका है, हुक्म दिया खानाए काबा, मेरा महबूब मेरे लिए झुका, तो काबा नबी के लिए झुक जा। मेरा महबूब मेरे लिए झुका है, ऐ काबे तू नबी के लिए झुक जा। इधर नबी झुके, उधर काबा झुका। परवरदिगार आलम ने काबे को इतनी बुलंदी अता फरमाई, इतनी बुलंदी अता फरमाई, ऐ काबे तुझे इतना मिलेगा, मेरे महबूब की ताज़ीम की है, इतना मिलेगा कि कयामत तक खत्म नहीं होगा, कयामत तक खत्म नहीं होगा। मेरा बंदा कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, अगर रुकू मेरे लिए करेगा तो चेहरा तेरी तरफ करेगा, क़याम मेरे लिए करेगा, चेहरा तेरी तरफ करेगा, सजदा मेरे लिए करेगा, चेहरा तेरी तरफ करेगा। अगर तुझसे चेहरा फेर लिया तो मैं उसकी इबादत कबूल ही। अगर सीना फिर गया तो नमाज होगी नहीं, चेहरा फिर गया तो मकरूह होता है, यानी सीना तो फिरना ही नहीं चाहिए है। तो तेरी तुझे भी इतना मिला, कयामत तक तेरी ताज़ीम होती रहेगी। हजरत आमिना बता रही है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब सुन रहे हैं, इस शान से नबी तशरीफ लाए। इसीलिए तो शायर ने कहा, असल में नस्ल में खल्क में खुल्क में कौन पैदा हुआ है तुम्हारी तरह। एक खातून है, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। तवज्जो से समझ रहे हैं ना, नबी के अखलाक की तरह भी किसी का अखलाक, बोलो हमारा अखलाक कितना बुरा है। मुस्तफा के एक प्यारे साहब, ये रिवायत में बता दूं जल्दी से, बीच में नींद तो नहीं आ रही। प्यारे सहाबी है नबी के, हजरत अनस, क्या नाम है बोलिए। 8 साल से नबी की खिदमत करते हैं, 8 साल की उम्र से नबी की बारगाह में रहते हैं और 10 साल खिदमत की उन्होंने नबी की। कितने साल बोलो, खुद कहते हैं ख़दमतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरा सिनीन, मैंने 10 साल खिदमत की। एक मर्तबा मुस्तफ़ा ने हजरत अनस से फरमाया, तवज्जो चाहूंगा, अनस से फरमाया, अनस तुम्हें फुला जगह जाना है, किसी जगह पर जाना है। हजरत अनस कहते हैं मैंने नबी की बारगाह में अर्ज कर दिया, आका ने फरमाया जाना है। अनस कहते हैं मैंने कहा वल्लाहि ला अज़हब, अल्लाह की कसम नहीं जाऊंगा। क्या कहा अनस ने, अल्लाह की कसम। अरसलनी, मिशकात शरीफ में यह हदीस पाक मौजूद है। अनस अर्ज करते अरसलनी लिहाजा, आका ने मुझे किसी काम के लिए भेजने का इरादा किया, भेजने के लिए फरमाया, मैंने कहा वल्लाहि ला अज़हब, अल्लाह की कसम नहीं जाऊंगा। आप कहे अपने बेटे से, बेटे जरा पानी पिलाओ, आपका बेटा कह दे अल्लाह की कसम नहीं पिलाऊंगा, तो कितनी गाली बकोगे, बोलो। उसके पीछे पीछे दौड़ोगे। अगर ये जुबैर साहब अपने शागिर्द को पढ़ाते, अपने शागिर्द से कहे बेटा जरा पानी पिलाओ, और बेटा कह दे, इनका शागिर्द बोल दे अल्लाह की कसम नहीं पिलाऊंगा, मोटी वाली कमची लेंगे, हाल नहीं तोड़ देंगे उसको। मैं कहता हूं पानी लेके आ, कह रहे अल्लाह की कसम नहीं पिलाऊंगा। ये उलमाए किराम है, इनके शागिर्द अगर कह दे अल्लाह की कसम आपका खाना नहीं ला के देंगे, अल्लाह की कसम आपके कपड़े उठा के नहीं रखेंगे, तो ये वाकई सर्व करेंगे, तादीब करेंगे, उसको अदब सिखाएंगे, मारेंगे पीटेंगे, सही करेंगे। चूंकि आज हमारे साथ ऐसा बोल रहा है, अगर कल को अपने बाप से अपनी माँ से ऐसा बोल दिया तो फिर क्या होगा। अदब सिखाना, अदब सिखाने के लिए मारना पीटना पड़ेगा नहीं। हजरत अनस ने कहा वल्लाहि ला अज़हब, मुस्तफा ने फरमाया जाना है। अनस बोले अल्लाह की कसम नहीं जाऊंगा। आका ने मारा नहीं, पीटा नहीं, मुर्गा नहीं बनाया, ज़र्ब नहीं फरमाई, तादीब नहीं की, कुछ भी नहीं कहा नबी। हमारा नौकर अगर काम ना करे, अगर है हमारी दुकान पर काम करने वाला अगर काम में सुस्ती कर दे तो कितनी गालियां बकते हो। ये अपने नबी का अखलाक देखो, यानी जिन बुजुर्गों के मानने वाले हो उनका किरदार देखो। आका ने कुछ नहीं कहा, अनस ने कह दिया कि नहीं जाऊंगा। आका ने कुछ नहीं कहा, मारा पीटा नहीं। अगला जुमला सुनोगे तो ईमान ताजा हो जाएगा। क्यों नहीं मारा पीटा, किस लिए नहीं मारा पीटा। हजरत अनस कहते इसलिए नहीं मारा पीटा, मेरे आका ने कुछ भी नहीं कहा, इसलिए वफी नफसी अन अज़हबा, वफी नफसी अन अज़हबा, मैंने जबान से तो कह दिया था नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे दिल में यह था कि मैं जरूर जाऊंगा।
बात है। नहीं बोलोगे यार सुभान अल्लाह? घूरो मत। हाँ, जितना सुनाना उतना सुनाऊंगा। यानी हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। वफी नफ्सी या नज़ा, मेरे दिल में ये था कि मैं जरूर जबान से कहा नहीं जाऊंगा, अल्लाह की कसम नहीं जाऊंगा, और दिल में ये था कि जरूर जाऊंगा। हमें पता चल गया, आका ने कुछ नहीं कहा, तादीब भी नहीं फरमाई, या कुछ कह ही देते आका, लेकिन नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि अपने आका सिर्फ जबान को नहीं सुनते, दिल के अंदर का झांक देते। क्या कहने बाप। दिल के अंदर, दिल में ये था कि मैं जरूर जाऊंगा, इसलिए आका ने मारा नहीं, पीटा नहीं। इसीलिए तो बरेली का है, बरेली का इमाम बोलता है, इमाम इसको मोहब्बत बोलते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, तुमसे उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, और फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो। क्या बात है बाप। अल्लाह सुभान। मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो, और कांटा मेरे जिगर से हमें रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। तो आका बोलो कहां नजर रखते हैं? कुरान में है, नबी के दरवाजे पे आके अगर नबी को कोई आवाज दे दे तो कुरान कहता है वो अक्लमंद नहीं है। कुरान क्या कहता है? वो अक्लमंद नहीं। अगर नबी के दरवाजे पे आए और नबी को बाहर बुलाना है तो हमारे आपके दरवाजे पे आएगा तो कुंडी खटखटाएगा, बेल बजाएगा, आवाज लगाएगा, कुछ ना कुछ तो कहेगा, तभी तो हमें अंदर पता चलेगा कि बाहर कोई आया है। अगर कोई दिन भर आपके दरवाजे पे खड़े होकर चला जाए, आपसे कहे कि आपके दरवाजे पे गया, आपसे मुलाकात नहीं हुई, आप कहेंगे उससे दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई, वो गए नहीं, ना दरवाजा खटखटाया, ना आवाज लगाई, ना घंटी बजाई, तो आप क्या कहेंगे? कितना बड़ा बेवकूफ है, जब दरवाजे तक आया था तो आवाज लगाना चाहिए थी। बोलो, आवाज हमारे आपके दरवाजे पर अगर कोई आए आवाज न लगाए तो बेवकूफी, और नबी के दरवाजे पे आ जाए आवाज लगा दे तो बेवकूफी है। दोनों में फर्क समझ में नहीं आ रहा है? गाड़ी तो नहीं हो रही बात, अमा सुना करो, सुना करो। हाँ, ये वाकया सुनने की आदि जो कौम बन जाती है ना। हाँ, नबी के दरवाजे पर आके आवाज लगाना बेवकूफी, और अपने दरवाजे पे आके आवाज ना लगाना बेवकूफी। हमारे दरवाजे जब एक नहीं हो सकते तो जात एक कैसे हो सकती है? समझ में भी आया नहीं? दरवाजा जब एक नहीं हो सकता तो फिर साथ एक कैसे हो सकती है? हमारे आपके दरवाजे पर आवाज लगाना बेवकूफी, ना लगाना बेवकूफी है। नबी के दरवाजे पर आवाज लगाना बेवकूफी है। नबी के दरवाजे पर आवाज लगाना बेवकूफी इसलिए है कि नबी घर में बैठा हो तब घर के बाहर का देख लेता है, और कब्र में लेटा हो तब कायनात का देख लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला। वाह, बोलो, है नहीं बेवकूफी? तवज्जो चाहूंगा। एक खातून है, फातिमा नाम है उनका। क्या नाम है? बोलो जरा जल्दी से। फातिमा। ये वो फातिमा नहीं जो मुस्तफा की बेटी है, और फातिमा सहाबिया है। सहाबिया हुई कि नहीं हुई? नबी की पैदाइश की रात हजरत आमिना के घर में मौजूद थी। कहाँ मौजूद थी? हजरत आमिना के घर में। वो बयान करती है, जल्दी से मैं बता रहा हूँ, वो बयान करती है कि मैंने हजरत आमिना के घर पे देखा, घर के कोनों को देखा, किनारों को देखा, जिधर भी देखा मुझे नूर ही नूर नजर आया, नूर के अलावा कुछ और नजर नहीं आया। ये कहती है वो कहती है मैंने घर की छत पे जब देखा तो क्या देखा? आसमान के सितारे आमिना के घर के करीब आ गए, इतने करीब आए, इतने करीब आए कि मुझे डर लगने लगा कि कहीं कोई सितारा टूट के गिर न जाए। ये कहती है। अब जरा सोचिए, सीने पे हाथ रख के, ये सितारे आमिना के घर के करीब क्यों आए थे, किस लिए आए थे? यानी दो रिवायत हदीस की, दो तशरीह मेरे सामने आई। या तो वो फरिश्ते सितारों की शक्ल में नजर आ रहे थे जो परवरदिगार आलम ने आमिना के घर भेजे थे, या परवरदिगार आलम ने सितारों ही को भेज दिया था, सितारों आमिना के घर चले जाओ, जो भेजा था रब ने। जरा मसीहत की तरफ गौर कीजिए। और मेरी समझ में जहां तक बात आती है, ये कुमकुमे लगाते हो, अपने घरों को सजाते हो, नबी की पैदाइश की रात में चरागा कर लेते हो। परवरदिगार आलम ने सितारों को भेजा इसलिए कि वो जमाना इन छोटे छोटे बल्बों का नहीं है, इन ट्यूबलाइट का नहीं है, ये कुमकुमों का नहीं है, ये चाइनीज बल्बों का नहीं है, CFL का जमाना नहीं है, जनरेटर लाइट का जमाना नहीं है। परवरदिगार आलम ने हजरत आमिना के घर सितारों को भेज दिया है, सितारों चले जाओ,
कहोगे सुभान अल्लाह। आमिना के घर से जाकर, अच्छा ये सजाना अपना ही तरीका नहीं, अपने बुजुर्गों का भी तरीका है। किसका तरीका है बोलो? एक अल्लामा है, अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी, वाकया सुना रहा हूं मैं। हाँ, हदीस शरीफ सुना दी मैंने आपको, आगे बढ़ूंगा। ये वाकया सुना, अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबाद, ये सवाल मुरादाबाद नहीं जो अपने करीब है, वो है गंज मुरादाबाद, लखनऊ की साइड में है, देवा शरीफ से लगभग 80 किलोमीटर के फासले पर है। हाँ, काफी दूरी है देवा शरीफ से। गंज मुरादाबाद, वो है अल्लामा फजलुर रहमान। आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान उनकी बारगाह में जाते थे, उनके पास जाते थे तो वो अपने सर का इमामा आला हजरत के सर पर रख देते थे और आला हजरत के सर की टोपी अपने सर पर रख लेते थे। अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी वक्त के वली भी है और बहुत बड़े अल्लामा भी है। जब नबी की पैदाइश की रात आती ना सालाना, तो क्या करते? अपने घर पर पूरे 100 चराग, कितने बोलो? 100 जलाते थे। कितने जलाते थे? 100। तेल के नहीं, घी के, डालडा के नहीं, वो भी देसी वाले के जलाते। कितने जलाते? 100। अच्छा, अंदर नहीं जलाते, घर की छत पे जलाते थे। वो किसी को थोड़ी जलाते थे, वो तो चराग जलाते थे। अगर जलने वाला खुद जल जाए तो वो थोड़ी जलाते थे, वो तो नबी के मोहब्बत में चराग जलाते थे, किसी को जलाते नहीं थे, वो तो चराग जलाते थे। जलाए पूरे 100 जलाए। एक साल जब जलाए तो एक हजरत ने देख लिए। किसने देखे बोलो? हजरत ने नहीं, हजरत ने। हाँ, हजरत ने देखे। तवज्जो चाहूंगा, एक हजरत ने देख ली, एक हजरत ने देख लिए। 100 जले, एक घर पे 100 जला। दरवाजा खटखटा दिया, अंदर से हजरत निकल आए। हजरत के चेहरे को हजरत ने देखा, चेहरा देखते ही समझ गए कौन है। हजरत बोले, मौलाना क्या आप ही का घर है? मौलाना बोले मेरा नहीं तो क्या तेरे बाप का? भाई तो है, ये घर मेरा है, मैंने जलाए जला। कहा 100 काहे को जलाए? क्यों जलाए 100? एक जलाया होता, 2 जलाए होते, 3, 4, 5 जलाए होते, ये 100 काहे को जलाए? किस लिए जलाए ये 100 चराग? कहा नबी के इश्क में जलाए हैं, इजहार अकीदत में जलाए हैं, नबी की मोहब्बत में जलाए हैं। बोले 100 क्यों? बोले मौलाना फजूल खर्ची है। हजरत बोले फजूल खर्ची है, ऐसे बोले। हाँ, मौलाना बोले तेरे यहाँ होगी फजूल खर्ची, मेरे यहाँ तो इजहार इश्क नबी है। क्या है ये इजहार? तेरे यहाँ फजूल खर्ची होगी। अब जरा समझाने का अंदाज देखो मौलाना से। बोले मौलाना ये 100 काय को जलाए? घी के चराग जलाए हैं आपने, इन तमाम चरागों को बुझा दो, तेल इकट्ठा कर लो, तेल जो इकट्ठा हो जाए उसको बेच दो, बेचने के बाद किसी गरीब बच्ची की शादी में लगा दो, काम ना बन जाएगा उसका। ऐसे समझाया, बड़े प्यार से समझाया। मौलाना बोले हाँ ये काम भी होता है, जब उसकी जरूरत होती है तो उसके लिए भी फंड होता है, इसके लिए तो अपने पास इजहार इश्क नबी है, हमें समझाएगा। लेकिन अपने बेटे की शादी में पूरी बस्ती में डेकोरेशन कर लेगा तब वो फजूल खर्ची नजर नहीं आएगी। हजारों हजार की आतिशबाजी उड़ा देता है तब फजूल खर्ची नजर नहीं आती है। वेज और नॉन वेज खाने बैठ के नहीं खड़े होके इन फंक्शन हालों में देते हैं तब फजूल खर्ची नजर नहीं आती है। पूरी बस्ती को खिलाते हो तब फजूल खर्ची नजर नहीं आती है। नबी की मोहब्बत में अगर चराग जला दिए तब फजूल खर्ची नजर आती है। मैं कहता हूं कि तू अपने बेटे की शादी में बस्ती में डेकोरेशन करना छोड़ दे, हम समझ लेंगे कि फजूल खर्ची से बचा। समझ में आ रही नहीं? बोले कि सारे चराग बुझा दो। मौलाना बोले बुझाऊंगा नहीं, जलाए हैं मैंने। बोले हजरत बुझा दो। मौलाना बोले नहीं बुझाऊंगा। बोले फिर मैं ही बुझा दूंगा क्या? ये बोले हजरत। मौलाना ने कहा हाँ जाओ आप ही बुझा दो। सोचने लगा, बड़ी जल्दी मान गए, सीधे साधे चल गया छत पे, बुझाना शुरू किए। 1 नंबर पे आया, फूंक मारी लगा के बुझ गया। दूसरे नंबर पे आया, फूंक मारी लगा के बुझ गया। तीसरे नंबर पे आया, फूंक मारी लगा के बुझ गया। इसी तरीके से 10 तक फूंक मारता चला गया। लगते गए कि मुझे पलट के देखा तो एक भी नहीं बुझा। नहीं बोलेंगे यार सुभान अल्लाह? पलट के देखा तो एक भी।
लगते गए बुझे, लट के देखता है मैंने सोचा हल्की हल्की लगी होगी, आया फिर 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, इसी तरीके से 5 नंबर तक वो फूंक मारी। अब तो थक गया, फेफड़े फूल गए, हाफ गया, काम गया, पलट के देखा अब भी नहीं बुझा। तीसरी मर्तबा फिर आया 1 नंबर पे, सोचने लगा कि हल्की फूंक लगी होगी, अब फूंक नहीं, जोर जोर से फुंकार मारने लगा, बड़ी जोर जोर से 1 2 3 तक फुंकार मारी थी, सीना फूल गया, फेफड़े फूल गए, हाफ गया, काम गया, दौड़ा दौड़ा मौलाना के पास आया और मौलाना से आके बोला हजरत एक भी बुझने का नाम नहीं लेता। मौलाना बोले तू क्या, तेरी पूरी बिरादरी भी बुझा नहीं सकती। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात मुफ्ती साहब, वाह वाह। तू क्या बुझाएगा, तेरी पूरी बिरादरी भी बुझा नहीं सकती। इसलिए कि अगर ये चराग तेल के जले होते बुझ गए होते, घी के जले होते बुझ गए होते, ये चराग न तेल के जले हैं न घी के जले हैं, ये चराग इश्क मुस्तफा के जले हुए हैं, बुझा नहीं सकता। इश्क मुस्तफा के चराग है, इसीलिए तो बरेली का इमाम बोलता है नूरे खुदा है। क्या बात है। अच्छा, अरे किसी शायर ने कहा है नूरे खुदा है, कुफ्र की हरकत पे खंदसन, फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, बहुत ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया। ये तो नबी की पैदाइश का थोड़ा सा मंजर आपने देखा, अगर इसी पे बयान करते रहे वो गौसे आजम की पैदाइश भी बड़ी लाजवाब है। जिस रात आए 1100 वली आए उनके साथ में हैं? कितने आए बोलो? 1100। कितने आए? 1100 हैं? सब लड़के। और कितने आए? 1100, 1200 नहीं, 1000 नहीं, कितने? हाँ, इसलिए आपको याद दिला रहा हूं बार बार, 1100 आए। अल्लाह ने पैदाइश के वक्त 11वीं का आदत तो 11वीं वाले पीर के लिए रख दिया है ना, 1100 भेजो। 1200 नहीं, 1000 नहीं, 1100 का आदत ही भेजा। इसलिए भेजा कि ताकि सबको अच्छा, सब वली बन के आए। जरा ये भी देखिएगा, सब वली बन के आए, जितने लड़के पैदा हुए सबके सब वली हैं। इसलिए कि जिस शान का सरदार जाता है, जिस शान का सरदार जाता है, उसकी इज्जत करने वाले, उसकी ताजीम करने वाले एक खास यूनिफॉर्म में होते हैं, एक खास लिबास में होते हैं, एक खास ड्रेस में होते हैं। परवरदिगार आलम ने जब वलियों के सरदार को भेजा तो वलियों की फौज के साथ भेजा है। 1100 वली आए हैं ताकि ये मालूम हो जाए कि ये जो पीछे आ रहे हैं तमाम वली है, और ये जो सैयदों के घराने में आ रहा है ये इन सब का सरदार बन के आया है। वलियों का सरदार आ रहा है। गौसे आज़म तशरीफ लाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके वालिद के ख्वाब में तशरीफ लाए हैं, अंबियाए किराम की जमात आई है, और आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके ये बशारत दी है कि ऐ मूसा जंगी दोस्त, तुम्हारे घर में जो बच्चा आ रहा है वो तुम्हारा ही बेटा नहीं, मेरा बेटा है। क्या कहा? वो मेरा बेटा फौवा वलदी। इतना ही नहीं कहा बेटे तो सब होते हैं, वह हबीबी, वो मेरा बेटा भी। मुस्तफा फरमाते ख्वाब में आकर, गौसे आजम के वालिदे गिरामी के ख्वाब में आकर फरमाते हैं फौवा वलदी वह हबीबी, वो मेरा बेटा भी है और मेरा महबूब भी है। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं तेरी सरकार में लादा है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हजरात मोहतरम, ये नबी की सीरत के बाब का एक हिस्सा मैंने आपके सामने बयान किया। कुरान कहता है या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, ऐ लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ गई, व शिफाउन लिमा फी सुदूर, और दिलों की शिफा आ गई, व हुदन, और रब की तरफ से हिदायत आ गई, व रहमतुल लिल मोमिनीन, और ईमान वालों के लिए रहमत आ गई। क्या गई बोलो? शिफा भी आई। ये 4 चीजें जिक्र फरमाई रब ने। तुम्हारे पास रब की जानिब से हिदायत आई है, रहमत आई है, दिलों की शिफा आई है, नसीहत आई है, ये तमाम चीजें आई है। उसके बाद परवरदिगार आलम अपने महबूब से फरमाता है ऐ महबूब जरा गौर से सुन लीजिएगा तर्जुमा जो मैंने बताया है कि सबने खुशी
خوشی منائی ہے. یہ خوشی منانا چاہیے کہ نہیں؟ اس نصیحت پر، اس شفا پر، اس ہدایت پر، اس رحمت پر رب فرماتا ہے اے حبیب تم کہہ دو اپنے امتیوں سے کہ ان تمام پر خوشیاں منایا کریں. کیا منایا کریں؟ بولو بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. ان کو چاہیے کہ اس پر وہ خوشیاں منایا کرے، خوب خوشی منایا کرے، خوش ہوا کرے. ہم نے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. بیٹری بہت چل رہی ہے اس کی 62% آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں بڑی شدت کے ساتھ انعام لینا عظیم شخصیت کا انتظار تھا. ہے پیر طریقت، پیر طریقت، رہبر شریعت، عالم بابل، مصلح قوم ملت حضرت العلامہ فضیلت الشیخ حضرت علامہ مولانا سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ مکمل شان خطابت کے ساتھ تشریف فرما ہو چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں تشریف لا چکے ہیں. بس اپنی بات میں پوری کر رہا ہوں ان اشعار کے ساتھ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ. آپ بول دو ہمارا نبی، تاکہ یہ شور شرابہ بھی کم ہو جائے. زور سے بول دو، اتنی زور سے کہ بچوں کا شور ختم ہو جائے. سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و بالا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا، دونوں عالم کا دولہا، دونوں عالم کا دولہا، دونوں عالم کا دولہا. کون دیتا ہے؟ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مائک سلامت رکھتے ہیں. بیچ جملے پہ ہی بول دیا ہمارا نبی. یہ تو بڑا پکا یاد ہے یہ شعر، اور سب کو بھی یاد ہوگا یہ پکا شعر. کون دیتا ہے دینے کو؟ دینے والا ہے سچا. یہ تو یاد ہے نا، دینے والا ہے سچا. یہ یاد رہے گا تو کبھی سسرال والوں سے مانگو بھی لے. ہاں اسے یاد ہی رکھنا، دینے والا ہے سچا. ہاں دینے والا ہے سچا. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ. سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ. غمزدوں کو رضا مجد دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. اور خاک ہو جائیں عدو، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میرے ساتھ میرے کو کلمہ پڑھیں لا الہ. السلام علیکم.